innovations and startups in a particular area, the entrepreneurial opportunities, and the funding resources available. So far, we have had discussions on innovation and entrepreneurship opportunities in various sectors, including food processing, waste management, healthcare, tourism, environmental sciences, biochemistry, urban planning and development, geographical sciences, e commerce, fintech, and agritech. In today's session, the topic of discussion is entrepreneurial opportunities in the area of education. For discussion, we have with us Dr. Ajit Kumar C., Assistant Professor, School of Education, IGNOU. Dr. Ajit Kumar has more than 15 years of experience in teaching and research in the area. He is actively involved in various innovative academic initiatives in the university. His areas of interest include educational technology, statistics in research, science education, teacher education, higher education, and open and distance learning. Dr. Ajit Kumar has publications in the form of edited books and has over 55 research papers and articles in national and international journals. He has presented papers and chaired sessions in various international seminars and conferences. He has also delivered talks. He is actively engaged in various national and international academic organizations. We welcome you to this session, Dr. Ajit. Thank you, madam. We also have with us Dr. O.P. Sharma, Director NCID. He is an expert in the area of innovation and entrepreneurship. We welcome you to this session, Dr. Sharma. Thank you. India's education sector is a rapidly growing industry that has revolutionized traditional learning methods and is poised for significant future growth. The Government of India has set the aim for the country to achieve a gross enrollment ratio of 50% by the year 2035. So there's ample room for expansion, especially in online education, higher education, and even school education, which is projected to grow substantially. The Indian market education sector is really poised for significant growth. India's education system is also witnessing a transformation under the new Education Policy 2020, which emphasizes holistic development, international collaborations. With favorable government support and government policies, there is also scope and potential for having investments. India is positioned to become a significant player in the global education landscape. In this scenario, education seems a lucrative space to build startups. There is scope for growth, but it is also important to think about creating value for the stakeholders. The entrepreneurs need to find a market, filter out a niche area, and build something innovative that meets the requirements of the people. Skill development, school education, test preparation, online certification, skill development are some of the fastest growing subsegments of India's education sector. There are various innovative companies which are leveraging technology to revolutionize education. They are offering personalized learning experiences, improving accessibility, and introducing gamification and interactive learning. The space is filling up with many unicorns and startups coming up in the area. So let us know more about this from our experts. And moving on to our discussion, Dr. Ajit, please tell us more about the education sector and what is the scope for innovation in this sector? Thank you, Dr. Sujata ji.
Now, when we talk about the education sector, I would like to start with, the various educational areas which we have, starting from school education, which comprises of the pre-primary, upper primary, then secondary education and higher secondary education. Carrying forward, we have the higher education sector where we have all those UG, PG programs and all. Then the other side, which is also there, like the professional education, where medical colleges, engineering colleges, law, teacher education, all those professional colleges come into picture. Apart from that, we also have the vocational institutions which provide vocational training. Then the IGNO-like institution which provide open distance learning education, open distance learning courses, etc. Now, see, when we talk about the innovation in this area, we can think of, how we can bring in changes, some innovative ideas cutting across all these sectors, starting from the school education to the all those educational areas which I was mentioning. Now, if that is the case, then we also have to little jump deep into that, like now where we can play all those, or where we can bring in some kind of newness, innovative ideas. So if that is the case, then we have to think of the activities which is being carried out in all these educational sectors or areas. So innovation, I think, can be in the form of course development, course delivery also, and right. also the use of technology. Absolutely. So I am coming to that. Now, if you are talking that, then we can maybe categorize, like one area would be the teaching, where we can think of some new ideas. Then the other is on the learning side of the students. That the other major areas is going to be the assessment part, how we assess the students. Then it can be on professional development areas, then managing the educational institutions. So all this, maybe we can say, like these can be the broader areas where we can think of bringing new ideas to the education sector. Would you like to add to this, Dr. Sharma? In fact, with this National Education Policy 2020 implementation, we can say there are immense possibilities and opportunities for innovation in our education sector. क्योंकि हम एक देखते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बेसिकली इट itself is very innovative, we all know, and it is very much promoting, supporting and recommending the innovations in the field of entire education system, right from the school education to higher education. Absolutely. And even the vocational education system. Whether it is at the research level, we can say the policy says that there should be a component of innovation in the research. If our PhD scholars, they are doing some research work, there should be a component of innovation in that. You have mentioned about the curriculum development and curriculum designing, because whatever NEP is suggesting or recommending, उस सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना जो करिकुलम है, we'll have to redesign it, rethink it, और and we'll have to bring in the components जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी कह रही है. जैसे पर्टिकुलरली मैं आपको कहूँ कि एजुकेशन पॉलिसी इज एम्फसाइजिंग ऑन द 21st century स्किल डेवलपमेंट. Education policy is emphasizing on the entrepreneurship. Education policy is emphasizing on the continuous and comprehensive evaluation. Education policy is emphasizing on the technological intervention in teaching, learning, support and evaluation in the entire process of education. इन सब aspects को अगर हम देखेंगे तो at every stage there is a need of innovation. और innovations हो रहे हैं और हम ये कहें कि और बहुत सारे स्कोप है इनोवेशन का. जैसे पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं पेडागोजिकल लेवल पे, अगर हम टीचिंग लर्निंग पेडागोजी की बात करते हैं, देयर इटसेल्फ देयर इज़ ए नीड ऑफ इनोवेशन. बहुत सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात, इट्स ए वेरी ओल्ड बट इन ए न्यू वे इट इज़ बीइंग प्रमोटेड. क्योंकि जो क्लासरूम रोट मेमोराइजिंग मेमोरी बेस्ड जो टीचिंग लर्निंग है, उससे थोड़ा हट करके
पॉलिसी सजेस्टिंग कि कहीं इस तरीके का हमारा पेडागोजिकल जो अप्रोच होनी चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स आर फीलिंग एंगेज्ड इन द एंटायर टीचिंग लर्निंग सिस्टम. वो उसमें अगर डूब करके सीखना चाहते हैं तो आई थिंक दिस विल इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एबिलिटी ऑल्सो. एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के फील्ड में भी बहुत सारे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स. कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं. अभी आपने कहा था गेम बेस्ड गेमिफिकेशन की बात. गेम बेस्ड टीचिंग लर्निंग नॉट ओनली यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म, अदरवाइज ऑल्सो अगर हम प्राइमरी या स्कूल लेवल की टीचिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ की बात की जाती है, एजुकेशनल गेम्स की बात की जाती है. अगर हम और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे देयर ऑल्सो देयर इज़ अ नीड फॉर इनोवेटिव इनिशिएटिव जहाँ पे आपको खेल खेल में सीखने वाली बात करते हैं. खेल खेल में सीखना ये कहा जाता है और हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, हर पॉलिसी में बात कही जाती है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज हमारे सामने यह है कि खेल खेल में सीखने वाली बात को हम कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट आवर टीचिंग लर्निंग इज एंटायरली फन ऑफ टीचिंग लर्निंग अगर हम कर पाते हैं देन वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी. और शायद इसमें एंगेजिंग द लर्नर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब तक आप लर्नर को एंगेज करने की इस तरीके की मेथोडोलॉजी नहीं बनाएंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उन चीज़ों को बच्चे को अपने साथ जोड़ पाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम में देखिए, क्लासरूम में अगर 60-50 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, देयर आर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनका अलग अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज लेवल अलग है, कैपेबिलिटी उनकी जो अलग अलग हैं, कंप्रिहेंसिबिलिटी उनकी अलग अलग हैं. तो आपको यू विल हैव टू थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज सो दैट आप सबको एक साथ लेके बात की, जो आप बात कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस की. इंक्लूसिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग तभी प्रमोट कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके के इनोवेटिव इनिशिएटिव्स आप लें जो कि आपको सभी को एक साथ लेकर के सो दैट इवन द बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके के इनिशिएटिव्स की जरूरत है. आजकल बहुत ज़्यादा है पर्सनलाइज अटेंशन की, पर्सनलाइज लर्निंग की बहुत बात की जा रही है. एंड पर्सनलाइज लर्निंग कैसे करेंगे, आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोचेज और इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है. और एक अप्रोच हमेशा ऐसा नहीं कि वही काम करेगी. ऑब्जेक्टिव यह है कि मुझे हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, उसको पढ़ाना है, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाना है, जिस तरीके से वो पढ़ सकता है उस तरीके से पढ़ाना है. तो आपको एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच डेवलप करनी है. दैट इज़ द वे ऑफ इनोवेशन. पेडागोजिकल की बात करते हैं एंड सर्टेनली हम बात कर रहे हैं कि जब एनईपी की बात करते हैं, एनईपी तो कह रही है कि आपको 21st सेंचुरी स्किल्स जो इंटीग्रेटेड हों, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो या क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, लीडरशिप की बात करते हैं, टीम अप्रोच की. देयर आर लॉट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स जिनको आपको इंटीग्रेट करना है. और हम सब लोग जो इस प्रोफेशन में बात करते हैं कि ये जो स्किल्स हैं दे शुड बी टॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स. अब इनके लिए दो अप्रोच हो सकते हैं. एक तो यह है कि आप सेपरेटली उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाइए, या फिर आप उनको आप करिकुलम में या जो कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं उनमें इंटीग्रेट करिए. तो आई थिंक इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक इनोवेटिव अप्रोच की जरूरत पड़ेगी. ये एक पेडागोजिकल लेवल पे है. और भी जैसे कई सारे इंक्लूसिवनेस की या एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, वो एक एरिया हो सकता है जिन पे हम आगे बात करते हैं. टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं. हमें ये बताइए कि एनईपी का इस सिनेरियो में क्या रोल है, जो हम स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बात करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में. तो एनईपी इसमें कैसे उसको एक मोमेंटम दे रहा है या एक उसको पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसका क्या रोल है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि एनईपी हमें बहुत सारी इस तरीके की रिकमेंडेशंस दे रही है और वो सजेशंस दे रही है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रिसर्च के साथ में इनोवेशन को इंटीग्रेट करना चाहिए, या आप जो इंडस्ट्री के साथ में आप लिंकेजेस करिए, आप हम जो है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिए, या हम कहते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करिए, या इंक्लूसिवनेस. ये जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं ये इस तरीके की रिकमेंडेशंस हैं एनईपी की, जिनमें कि आपको मल्टी प्रोंग एक तरीके से अप्रोच लेने की ज़रूरत है.
क्योंकि अगर हम क्लासरूम टीचिंग में बात करते हैं कि आपको इंक्लूसिवनेस लानी है, इंक्लूसिव टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक उस तरीके का माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि आपको अप्रोच ही बदलनी है, और उस डायरेक्शन में बहुत सारे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई इस तरीके से इनिशिएटिव लेकर के काम कर रहा है और कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है या कोई इस तरीके का एक किट बना रहा है ऐसी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आई थिंक वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में एक डायरेक्शन है। ऐसी जैसे बात करते हैं कि एनईपी कह रही है कि आपका गेम बेस्ड या गेमिफिकेशन को उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। गेम बेस्ड टीचिंग लर्निंग, देखिए जो टीचर है हमारा, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उनकी ट्रेनिंग के दौरान में। उस ट्रेनिंग में उनको कुछ चीज़ें कि हाउ टू ट्रांजेक्ट टीचिंग लर्निंग वो सब बताया जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं एजुकेशनल गेम को भी इंक्लूड करना है उसमें, तो टीचर तो नहीं बनाने वाला ना, उसके लिए तो कहीं ना कहीं कोई और दूसरी कोई एजेंसी कोई इंडिविजुअल को सोचेंगे। जैसे मैं बताऊं बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स आपको मार्केट में मिलते हैं। एजुकेशनल गेम्स जो मार्केट में मिल रहे हैं, जो अब टीचिंग लर्निंग के लिए यूज भी किए जा रहे हैं स्कूल्स में, पर्टिकुलरली प्राइमरी या स्कूल लेवल पे, तो उनको जो बनाने वाली इंडस्ट्री है दैट इज एन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और वो जो इनिशिएटिव है वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है। ऐसी अगर आप सपोज करो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के लिए आप कोई लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग किट बनाना चाहते हैं, या आप कहीं साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप देखते हैं एक तरीका है कि हमारी जो फुल फ्लेजड साइंस की लैब होती है वहाँ स्टूडेंट जाएगा प्रैक्टिकल करेगा। लेकिन क्यों नहीं हम जो क्लासरूम में पढ़ने के समय हम जो पढ़ाने की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट कराने की बात करेंगे, जब वहाँ उस तरीके की सोचेंगे तो सर्टेनली हमें कोई किस तरीके की हैंडी साइंस लैब किट की जरूरत पड़ेगी। और साइंस लैब किट कौन बनाएगा? कोई एंटरप्रेन्योर बनाएगा। जब इस तरीके कोई डिजाइन कर रहा है और उसका मास स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो मीन्स बिजनेस उससे क्रिएट हो रही है, तो वो एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप का एक डायरेक्शन है या एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे अगर आप बात करते हैं कि जैसे कि आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारा डिजिटल कंटेंट बहुत क्रिएट की जा रही है, अलग अलग तरीके की बहुत ही मैनुअल बेस्ड लो कॉस्ट और इंटरैक्टिव बुक्स बनाई जा रही हैं, जिनमें अलग अलग जैसे मल्टीमीडिया को इंटीग्रेट करके अगर आपको कई सारी ऐसी बुक्स हैं, प्राइवेट जो एजेंसीज हैं या स्टार्टअप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स वो बना रहे हैं कि आपको साइंस की किताब दे रहे हैं, वो साइंस की बुक में वहाँ एक्टिविटी भी है, वहीं पे आपको कहीं वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, कहीं और इस तरीके का और कोई भी कंपोनेंट उसमें है, और उन्होंने बड़ा यूनिक तरीके से एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना लिया। उसको अगर हम कहें कि एक पैकेज बना देते हैं, और पैकेज आपने देखा उसको टेस्ट एंड ट्राई किया, और अगर सक्सेसफुल है तो उसको मास प्रोडक्शन करिए, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में बिजनेस बनता है। राइट। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटी है बेसिकली दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी, जिनको हमें देखना है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम में टीचर हैं और जो पूरी मशीनरी है, सिस्टम है वो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई काफ़ी नहीं है। हम और बाकी जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, आई थिंक दे शुड ऑल्सो थिंक कि कहीं ना कहीं हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या कोई और बहुत इनोवेटिव तरीके से कोई किट बना सकते हैं, कोई टीचिंग लर्निंग पैकेज बना सकते हैं, या कोई और मोबाइल ऐप बना सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई इस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और जो भी आप बनाएंगे तो आपको एक बहुत बड़े नंबर के लोगों को कवर करना है, तो मीन्स बिजनेस भी करनी है उसमें। दैट इज द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। I will also add one point to what Professor Sharma was saying. The NEP also talks about one major change is like that 10 plus 2 is going to be 5 plus 3 plus and 4. So what happens is nowadays, otherwise we were having that pattern, we used to start our schooling from 5 years or 6 years. Now it is going to be formal. So the formal schooling will start from 3 years onwards of a child. And the pedagogy, the teaching style they are proposing is like even though it is very similar to game based, it is they are saying like a toy based pedagogy होगा। तो काफ़ी सारा जो pedagogy का जो learning aids इनको चाहिए होगा बच्चों को, to make them engaged in the learning, and उसको तो काफ़ी सारा स्ट्रेस भी दिया है। why? Because most of the cognitive development इनका learning जो वही पीरियड में होता है जो बच्चों का स्मॉल यंगर डेज में, तो ये एक पॉसिबिलिटी है।
देन पेडागोजी दूसरा एक्टिविटी भी बोल रहे हैं, इंक्वायरी बेस्ड करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट को इंटीग्रेट करना है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग मेथड, तो ये सारा एक एवेन्यू क्रिएट कर रहा है, मतलब फॉर द एंटरप्रेन्योर्स they can think in that line also and come out with some ideas which would be suitable for all these kind of देखिए इस resources. केस में मैं आप एक और चीज़ बताऊं, जैसे आजकल हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम बच्चे के लेवल पे जाते हैं तो बच्चे की किस तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लेवल पे। जैसे अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं तो आजकल मोबाइल एक ऐसा डिवाइस हो गया है हमारे घरों में कि जो बच्चों के हाथ में बहुत इजीली अवेलेबल है, All the time. और मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसका बड़ा मिसयूज करते हैं, बिकॉज वो उससे मोबाइल से लगे हुए हैं एंड देन इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम मोबाइल बेस्ड एजुकेशनल गेम्स, जैसे बच्चों को एजुकेशनल गेम्स बहुत पसंद होते हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं जिनमें कि आप टीचिंग लर्निंग भी हो रही है, कुछ मैसेज भी जा रहा है और उनका एंगेजमेंट भी है, इंस्टेड ऑफ कि वो दूसरे मोबाइल गेम्स पे जाएं जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं या उनके माइंड को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नाउ देयर इज अ चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, कि क्या आप इस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ गेम्स, इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल ऐप्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर डिवाइसेज, आर्टिकल्स आप डेवलप कर सकते हैं जिनमें कि न केवल उनकी लर्निंग हो रही हो बट उनका एंगेजमेंट भी हो रहा हो और इंटरेस्ट भी आ रहा हो। बिकॉज जब आपको किसी स्टोरी की फॉर्म में कहीं इस तरीके से अगर आप देते हैं और उससे बच्चों का एंगेजमेंट भी हो रहा है, उसे जैसे मैंने कहा था कि एक फ़न क्रिएट करना है आपको टीचिंग लर्निंग के साथ में, अगर हम उसके थ्रू कर पा रहे हैं। बहुत सारे जैसे कार्टून बेस्ड आपने देखा होगा सीरियल्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो कार्टून बेस्ड सीरियल एक तो ऐसा सिंपली हमने जैसे ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, अगर हम उसको किसी तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ लिंक कर देते हैं, करिकुलम के साथ लिंक कर देते हैं और उसको कहीं लाइफ स्किल्स और जो नेसेसरी स्किल्स जिनको ज़रूरत उठती है, हमें बड़े होने पर बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हम 21st सेंचुरी की स्किल्स की भी बात कर रहे हैं, उनको उनके थ्रू अगर हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं ना, आई थिंक दैट विल बी ए वेरी इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग। और वहाँ बहुत स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप का, इवन इनोवेशन का, बिकॉज जो अप्रोचेस अभी यूज़ की जा रही हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, आपको देखना है कि क्या वो इफेक्टिवली यूज़ की जा रही हैं, बच्चे टीचर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या कमियां हैं, व्हाट आर द गैप एरियाज, अकॉर्डिंगली उनको इम्प्रोवाइज करें, उनमें चेंजेस लाएं, एडिशन करें एंड देन मेक इट अवेलेबल टू द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो। कई बार पेरेंट्स के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरत पड़ती है उन्हें कि कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर मिलें, मोबाइल ऐप मिलें, जहाँ से उनको पेरेंटिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ अपने बच्चों को। इसमें अगर हम देखें तो एक एरिया ये भी है जो एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का एरिया है जहाँ पर वो ट्यूटरिंग प्रोवाइड की जाती है, कोचिंग सेंटर्स आते हैं, उसमें कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इवन करियर काउंसलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। दे कुड बोथ बी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स, और दे कुड बी फिजिकल मींस मोस्टली। अगर कोई अपना स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा एरिया है क्योंकि टीचिंग लर्निंग हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हो रही हैं और सिस्टम एक बना हुआ है पूरा उस तरीके से, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चों को एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले उसको। कई बार वो प्राइवेट ट्यूटर्स भी रखते हैं और कई बार उनको जब बच्चे या पेरेंट्स स्ट्रेस में होते हैं उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, अगर बच्चा अगर अटेंशन पे नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसको उसकी तरफ में गाइड किया जाए, रिडायरेक्ट किया जाए टीचिंग की तरफ में। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कैरियर काउंसलिंग भी है, पर्टिकुलरली अगर हम 10th-12th के बाद देखते हैं तो पेरेंट्स के सामने आता है कि 12th के बाद में इधर जाएं, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाएं या किसी और फील्ड में जाएं, आर्ट्स में जाएं या कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करें। तो ये इतने सारे एरियाज आ रहे हैं जिनके हिसाब से आई थिंक देयर इज ए नीड ऑफ डूइंग इन ईच एरिया लॉट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज की ज़रूरत है। And these all consultancy services, I can say they are the entrepreneurial ventures.
और उनको बहुत बड़े लेवल पे स्टार्टअप की फॉर्म में भी लिया जा रहा है। करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं। और करियर काउंसलिंग की क्या अब मैं बताऊं आपको कि मोबाइल और जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कितने सारे प्लेटफॉर्म्स बना दिए हैं कि आप अगर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं दैन यू आर पुटिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे उसको लेकर के एआई की मदद से आपका जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है, उसको असेस करके दे आर गाइडिंग यू कि दिस सेक्टर विल बी यूजफुल फॉर यू, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, आप इस कॉलेज में जाइए। कई बार उनको प्रमोशनल भी यूज़ करते हैं बहुत से प्राइवेट जो अपने हिसाब से, बट अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ऐप हैं, जिन पे आप जाएंगे तो दे विल गाइड यू प्रॉपरली कि आपके लिए दीज आर दी सुटेबल एरियाज जहां आप पढ़ाई का हायर स्टडी कर सकते हैं, या आप जो अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। इवन जो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अब्रॉड, उनके लिए भी एक कंसल्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विस का बहुत बड़ा स्कोप है। दे नीड ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। उनको पता ही नहीं होता है कि मुझे कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस तरीके से सेलेक्ट करना है, मेरी और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज अब्रॉड भेजने के लिए हैं, या अगर हम जैसे मैं बात कर रहा था मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए हैं, ये बहुत सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, या और जो पेरेंटिंग सर्विसेज, ये सारी बहुत पॉसिबिलिटी हैं अगर हम देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, इवन फॉर द इनोवेशन। क्योंकि मैं इनोवेशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नयापन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी आपकी जो कंपटीटर है दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट यूनिक, तो वो आपको एक इनोवेटिव एंगल से ही आएगा, इनोवेटिव माइंडसेट होगा, देन ओनली यू कैन थिंक। फिर इसी तरीके से एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स एंड पब्लिशिंग सेक्टर, ये तीनों भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे काफ़ी स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि एनईपी की बात करते हैं, या अगर हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं, या उनको क्लासरूम्स को अपडेट करने की बात करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात करते हैं, तो ये सब इनको बनाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना। आपको कहीं ना कहीं उस तरीके का करना पड़ेगा सो दैट यू आर प्रोवाइडिंग दोज ऑल सर्विसेज। डिस्कशन को, चर्चा को विराम देते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media.
and we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में उद्यमिता की ओर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है और जो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स का एरिया है उसमें बहुत स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का। नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं और उसमें जैसे NEP ने काफ़ी नए उसमें चेंजेस लाया है करिकुलम में, और जो नीड्स जो अभी अराइज हो रही हैं इसी के लिए, और उसके ऊपर और कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो NEP हो या और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, जब भी हम कोई चेंज करते हैं किसी सिस्टम में, नयापन लाते हैं, जैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बहुत बात हो रही है या नए नए तरीके से जो पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि आपको डिजिटल क्लासरूम बनाना है, अगर टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करना है, आपको देखना है मल्टी मीडिया बेस्ड टीचिंग लर्निंग करनी है, आपको वीडियोस या सिमुलेशन को इंटीग्रेट करना है, तो बहुत सारे स्कूल्स में पर्टिकुलरली या कॉलेज लेवल पे भी जो डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स डेवलप किए जा रहे हैं। जब हम डिजिटल क्लासरूम या स्मार्ट क्लासरूम की बात करेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके लिए रिक्वायर्ड आइटम्स, इक्विपमेंट और बाकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो एजुकेशन के सेक्टर में एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इस फील्ड में आ रहे हैं जो नॉट ओनली डेवलप कर रहे हैं बट उनको वहाँ पे इंस्टॉल भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और क्योंकि जब कोई चीज़ नई आती है, नई टेक्नोलॉजी आएगी या नया कोई इस तरीके का होगा, तो वहाँ उसके यूजर, चाहे वो टीचर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों या इवन द स्टूडेंट्स हों, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग भी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने लो कॉस्ट टीचिंग किट्स की भी बात की हाँ, थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे टीचिंग किट्स की बात कर रहे हैं, या हम बात करें कि जो पर्टिकुलर जो साइंस पार्क की बात करते हैं, आजकल बहुत सारी जगह पे, बहुत स्कूल्स में या बहुत कम्युनिटी बेस्ड ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जहाँ साइंस पार्क हैं या कुछ एक्टिविटी पार्क टाइप के डेवलप किए जा रहे हैं, और जिनका पर्पज है कि किसी न किसी साइंस या एजुकेशन से रिलेटेड किसी कंसेप्ट को या एप्लीकेशन को वहाँ बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए अवेलेबल कराना। तो ऐसी चीज़ों को डेवलप करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एजेंसीज़ की, और वो जो एजेंसीज़ होंगी वो ज़रूर अपनी बिजनेस करेंगी या अपना स्टार्टअप कर सकती हैं। ऐसे ही अगर हम साइंस किट्स की बात करते हैं, क्योंकि आजकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रमोट करने के लिए हमेशा से कहा जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि कैसे उसको करें। तो ये ज़्यादा सबसे अच्छा रहता है कि बच्चों को अगर हम पढ़ाने के साथ साथ ही अगर हम करके दिखाएं, तो करके दिखाएं का मतलब है कि वहाँ आपको लो कॉस्ट या इजीली अवेलेबल या बहुत इजीली डुएबल काइंड ऑफ थिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
और वो ऐसी चीज़ होगी जो पोर्टेबल का किट होगी, छोटी होगी, आपके बैग में जा सकती है। आप क्लास में गए और वहाँ जाकर के आपने उसको खोला, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक पे बेस्ड आपने उस किट को लेकर के एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटीज़ करना शुरू कर और दिया। इवन पेरेंट्स कैन बाय दोस किट्स, पेरेंट्स भी अपने घर पे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बाई करते हैं बच्चों के लिए। जैसे छोटे लेवल पे तो हम देखा है प्राइमरी जो इवन केजी एलकेजी के बच्चों को छोटी छोटी किट्स वो बाई करते हैं और वहाँ पर उनको कुछ ब्लॉक्स होते हैं, उनसे कुछ शेप्स बनाई जाती हैं, कुछ अलग तरीके के आइटम्स बनवाने के लिए मैनुअल भी होते हैं। और उन सब के पीछे क्या है, बच्चों को एक तो एंगेज करना, उस प्रोसेस में एंगेज करना। तो अगर जब एंगेज होंगे, अपना उनका दिमाग लगाएंगे, मुझे इसको यहाँ ऐसे फिट करना है, ऐसे करने से ये ठीक होगा नहीं होगा, तो उनका एक मेंटल डेवलपमेंट होता है। दूसरा ये भी है कि वो जो अगर कोई कंसेप्ट है उसके पीछे कुछ आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो भी क्लियर होती है। बिल्कुल सर। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड बात करते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर सकते हैं या हम कहें कि सेपरेट भी, स्किल डेवलपमेंट का एक एरिया है, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल के लिए, जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है कि बच्चों को राइट फ्रॉम बिगनिंग स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में प्रमोट किया जाए। और कई सारे इंस्टीट्यूट्स में और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि बच्चों को राइट फ्रॉम बिगनिंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव थिंग। अगर उसी को लेकर के अगर हम और आगे बढ़ाएं तो दैट कैन लीड टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के फील्ड में एज वेल एज इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। डिफरेंट स्किल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे रेफ्रिजरेटर एक जो होता है आपका रिपेयर करने वाला जो होता है मैकेनिक, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के केस में क्लासरूम में या कहीं वोकेशनल इंस्टीट्यूट में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ एक बड़ी सी वर्कशॉप होती है, लैब होती है, और उसको लैब में जाकर के उनको वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है कि आप वो स्किल डेवलप कर सकें। आप देखिए कि वो इतना बड़ा वर्कशॉप डेवलप करना कई बार बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, और अगर कोई पार्ट वहाँ से हटाना है, फिर लगा करके उसको देखना है आप ठीक से फिट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं एक जानता हूँ कि मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने इस तरीके का एक किट डेवलप की है कि उस किट में ही पूरा का पूरा इन वन फ्रेम उन्होंने पूरा रेफ्रिजरेटर का पूरा सेटअप बना दिया, ताकि हर आइटम उनका अलग अलग दिखाई दे रहा है, और उस आइटम को कहाँ से आप कैसे निकाल करके या चेंज करके रिप्लेस कर सकते हैं या उसको और उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपको स्किल, क्योंकि वो एक तो होता है जब फ्रिज को देखिए, फ्रिज एक कंपार्टमेंट एक डिब्बे की तरह है, और उस डिब्बे में आपको अलग अलग कहाँ क्या दिख रहा है। लेकिन अगर उनके पार्ट्स को अगर आप एक सरफेस पे डाल दें और उनको कनेक्ट कर दें और देखें कि किस किस तरीके से है, तो आपके सामने एक ही उस पिक्चर में आप सारा कुछ दिखाई दे रहा है। और वहाँ देखिए आपको किस तरीके की अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो आप आराम से कोरिलेट कर पाते हैं। इस तरीके की किट डेवलप की जा रही हैं, तो ये एक इनोवेशन है। और अगर हम और बड़े लेवल पे करें और हर स्कूल में या हर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल कराएं, तो जब कराएंगे तो वो एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, वो स्टार्टअप में भी हो सकता है। एक चीज हुई, ऐसे सभी सारे सेक्टर्स में वर्किंग मॉडल, बेसिकली हम कहेंगे वर्किंग मॉडल टाइप के, और वो भी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर उसमें और थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं, मान लो हमने एक तख्त या जैसे हम चारपाई के बराबर के जगह पे वो सारा सेटअप बना दिया, और उसमें हमने नीचे व्हील्स लगा दिए उसके साथ में, तो वी कैन कैरी इट, यहाँ से वहाँ उसको मूव भी कर सकते हैं और एक जगह दूसरी जगह ले जा करके उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ पे तार को कहाँ से जोड़ना है, कहाँ से उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ऑल्सो ये जो है जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अगर कोई इसको ग्रो करता है, इसका एक सेटअप लगा के एक तो डिलीवर होगा ही ना, कि लैब में आप एक रखिए स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। नहीं, अब देखिए ना पॉइंट यार, जैसे दिस इज वन ऑफ द मेजर एरियाज वेयर पीपल कैन थिंक ऑफ लाइक डेवलपिंग द लर्निंग रिसोर्सेस, बट देन फिर ये दो बात आता है। सी वी हैव टू ऑप्शंस, एक तो टेक्नोलॉजी का साइड है, द सेकंड इज नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड। आजकल क्या होता है ना, थोड़ा बहुत मुझे भी वैसे ही लग रहा है ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है ना, बट वी शुड
people can also think of how they can develop the hard copy form of learning resources also. लेकिन इन सम सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एक्सेट्रा कभी कभी ये होता है, इन सम स्कूल्स यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी लैब्स ऑल्सो. तो क्या करें बच्चे, हाउ दे विल डू द एक्सपेरिमेंट. इफ दैट इज द केस, फिर वर्चुअल लैब का बात करता है, लोग डेवलप करता है. तो ये दिस इज ऑल्सो अदर पॉसिबिलिटी. लाइक सेकेंड जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें वो काफ़ी इट इज़ ऑलवेज अ टफ सब्जेक्ट फॉर मेनी किड्स. तो उसमें क्या हार्ड कॉपी फॉर्म में नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या क्या रिसोर्सेस बना सकते हैं, जैसे साइंस की टर्म बनाता है उस तरह का, उसमें भी काफ़ी सारा मैथ्स किट भी बन रही है, मैथ्स लैब भी बन रही है. और इसके क्योंकि मैथ्स में अगर मान लो ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, किस तरीके से उसको रेक्टेंगल बनाना है, अलग अलग आपके आइटम दे दिए, उनको असेंबल करिए, एक रेक्टेंगल बनाना है, असेंबल करिए कि ट्रायंगल बनाना है, असेंबल करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. तो ये इस तरीके की जो लो कॉस्ट टीचिंग एड्स हो गए ना, टीचिंग एड्स का तो इतना बड़ा मार्केट है. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ इनोवेटिवली यू आर थिंकिंग. इनोवेटिवली इस तरीके से उसमें 2-3 एस्पेक्ट आते हैं इंपॉर्टेंटली. एक तो आता है कि आपका कॉस्ट फैक्टर है. अगर आपने कॉस्ट फैक्टर को ध्यान में रख लिया कि आप जो भी टीचिंग एड या टीचिंग असिस्टेंट्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, किस लेवल के लिए कर रहे हैं, तो उसको आप कितनी कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं सो दैट उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएँ. इवन अगर इंडिविजुअली स्टूडेंट या पेरेंट्स करना चाहते हैं तो उसको अफोर्ड कर पाएँ. एक इफेक्ट. दूसरा ये होता है कि उसका साइज़ के ऊपर भी मैटर करता है. अगर आपने उसको इतना पोर्टेबल बना लिया कि वो आराम से कैरी कर सकते हैं इधर से उधर, तो वो आराम से उसको लोग यूज़ करेंगे. अगर बहुत बड़ा हैवी बना दिया देन यूजेबिलिटी उसकी कम हो जाती है. तीसरा एस्पेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप उसके साथ में कोई एक अच्छा मैनुअल बनाते हैं, मैनुअल मतलब एग्जैक्टली उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उससे फुलफिल होंगे, उसको करने के बाद में आप क्या क्या सीख रहे हैं, और फिर सीखने के बाद में अगर हम उसको देखें कहीं अप्लाई कैसे कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है. चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी से हम एकदम से भाग नहीं सकते. हमें टेक्नोलॉजी तो हैज़ बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल कोई इस तरीके का वीडियो कंटेंट भी बना देते हैं जिसमें आप उसको यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं कि अब इसको ऐसे ही यूज़ करना है, तो आपका एक तरीके से एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा. एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, उसको देखने के बाद में अगर कोई आपकी उस किट को या आपका जो भी आपने टूल किट बनाई है, गेम किट बनाई है, उसको यूज़ करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा. ये चीज़ें इवन साइंस किट के लिए भी इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं. मतलब we can have it in the product form and then we can have it supplemented with web based some resource so that वो उसका visual demonstration भी हो. अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करते हैं, आपने स्मार्ट क्लासरूम्स की बात की, डिजिटल क्लासरूम्स, ऑनलाइन की बात की, अब एआई भी आ रही है एंड एआई पावर्ड सॉल्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशनल सॉल्यूशंस. मल्टीमीडिया का यूज़ बहुत किया जाता है और काफ़ी समय से हम लोग करते आ रहे हैं. वेब बेस्ड लर्निंग और मोबाइल लर्निंग एप्स बन रही हैं. तो और ऐसे क्या टूल्स हैं जो एडटेक के उसमें एरिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. सबसे बड़े स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स तो हैं ही हमारे पास, बाइजू है, यूडेमी है और यूएन एकेडमी है. तो और ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स देना एक्चुअल में 2 चीज़ें हैं. एक तो है आपको जैसे कि स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं या एडटेक्स की बात करते हैं, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ठीक है, टीचिंग लर्निंग के लिए आपने इस तरीके के सॉफ्टवेयर बना दिए, आप उन पे जाइए, वहाँ से अपनी कंटेंट उनको एक्सेस करिए, सीखिए. एक तो वो एक तरीके. एक ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको आप वो जो बनाए हैं, जो इस तरीके का सिस्टम, वो आपको एंगेज भी कर रहा है, आपको कुछ असाइनमेंट भी दे रहा है करने के लिए, मतलब आपको सिखा भी रहा है, साथ में आपको ये भी एंगेज कर रहा है कि अब आपने सीख लिया तो डू दिस थिंग, तो करने के लिए भी कह रहा है. करने के बाद में आप वहाँ पे बता रहे हैं कि यस आई हैव डन, तो वो असेस भी कर रहा है. तो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच भी की जा रही है बहुत सारी असाइनमेंट्स जो टूल्स में. वो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव इनिशिएटिव है. और इस कॉन्टेक्स्ट में
कई सारे स्टार्टअप्स हैं और आज की डेट में वो ज़्यादातर एआई का बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप वो देखते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने अभी क्या किया है, किस तरीके से आपका जो ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज़ों को आप एक्सेस कर रहे हैं, उसी हिसाब से दे आर जनरेटिंग ए टेस्ट पेपर फॉर यू, क्विज आप जनरेट कर रहे हैं, आप उसका आंसर दे रहे हैं, है ना। तो एआई पावर्ड जो टूल्स हैं आजकल वो बहुत यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनके थोड़े से नुकसान भी हैं, क्योंकि कई बार वो वहाँ आपका थॉट प्रोसेस उतना काम नहीं कर पाता है, इसलिए आपको टोटली उनके ऊपर डिपेंड न रह करके जो मैनुअल काइंड ऑफ, चाहे वो हैंड्स ऑन डूइंग वाली बात हो, एक्टिविटीज़ की बात हो, एक्सपेरिमेंट्स की बात हो, आप वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट्स का एक फील तो ले लेंगे कि इस तरीके का अगर कोई इक्विपमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, मैंने कनेक्शन ऐसे ऐड किया तो उसके साथ उसका आउटकम ये आ गया, ये रीडिंग आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जब अगर आप किसी पोटेंशियोमीटर के तार को, कनेक्शन वायर को जब कनेक्ट करेंगे, वो कनेक्ट करते समय फिर आप उसको कनेक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि आपका फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है, तो वो वाली फील वहाँ नहीं आएगी। वो तभी आएगी जब आप देखेंगे नहीं वो या तो तार पे कहीं वो उस पर वो आ गया है, कार्बन वार्बन आ गया है, या वो टाइट नहीं है, तो वो तभी होगा जब आप एक्चुअली आप कर रहे हैं। तो रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, उसको पोटेंशियोमीटर को रिप्लेस करने के लिए आप कोई ना कोई नया लो कॉस्ट आइटम सोच सकते हैं। इजीली अवेलेबल जो आपके आइटम्स हैं, चीज़ें हैं, उनसे मिला करके आप कोई ऐसा सोचिए कि वही प्रिंसिपल वहाँ पे किस तरीके से उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसी तरह से जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और इस सब के लिए भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्लासरूम मैनेजमेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रहे हैं। और आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, तो लैंग्वेज टीचिंग की भी एक अलग टारगेट सेगमेंट है जो इसके लिए भी नीड है, वहाँ पे एक मार्केट सेगमेंट है। इसका ये इम्पोर्टेंस इसलिए भी आ रहा है, जैसा इफ़ यू सी द एनईपी ना, दे आर ऑल्सो प्रोपोजिंग द ब्लेंडेड काइंड ऑफ लर्निंग सिचुएशन। तो क्या होता है ना, उसमें सम कंटेंट दे विल टीच इन द क्लासरूम, बाकी दे विल टीच इन द टेक्नोलॉजी मीडियम। तो इफ़ दैट इज़ द केस, फिर आ जाएगा पूरा जो ई कंटेंट क्रिएशन का एक बड़ा एरिया है। ई कंटेंट क्रिएशन, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, डेवलपिंग लाइक एनीथिंग। जो उसमें जो कनेक्टिंग टू दिस लैंग्वेज लैब इज अनदर एरिया विच पीपल कैन थिंक ऑफ, क्योंकि एनीबडी काफी सारा लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दिया है जो एनईपी में। तो अगर एनईपी ने तो इम्पोर्टेंस दिया, बट अदरवाइज आल्सो देयर इज अ मार्केट सेगमेंट। एनीबडी कैन वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, और उसके लिए फिर आप एक स्टार्टअप या एक दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, दैट इज वन थिंग। Second thing, you want to learn in any language. That is also most important. that is also Because learning one language, ठीक है, मुझे इंग्लिश या हिंदी या कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और ज़रूरत भी है। लैंग्वेज है ना, लर्निंग लैब्स और सेंटर्स भी खोल सकते हैं। लैंग्वेज लैब्स की बात है, या इस तरह के बहुत सारे एप्स भी हैं जिसमें आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको लैंग्वेज टीचिंग की जाती है, आपको लर्निंग के लिए सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा, आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ कंटेंट अवेलेबल है इंग्लिश में, आपकी लैंग्वेज है हिंदी या कन्नड़ या कुछ और आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो उसकी ज़रूरत है। क्योंकि एनईपी हमारी कह रही है कि रीजनल लैंग्वेजेस में या हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं उनमें हमें पढ़ाई, साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, मेडिकल की हो, सारी पढ़ाई उनमें हो। तो उस डायरेक्शन में भी बहुत सारे इनोवेशन और स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, सो दैट दी कंटेंट, रीडिंग मटेरियल, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो या और किसी तरीके का, वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल कराया जाए। अब देखिए कि इसमें कई सारा मैं देखता हूँ कि जैसे यूट्यूब में कुछ फीचर्स इस तरीके के आ रहे हैं, या बहुत सारे और डिवाइसेस में भी आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं, कि आपको जो बोलने वाला है वो अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन उसके नीचे जो कैप्शंस हैं वो आपके लैंग्वेज, और वहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सेलेक्ट आप हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, इवन कई जगह में देखा कि यू कैन सेलेक्ट द रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। तो आप रीजनल लैंग्वेज में वो बोल क्या रहा है, तो आपको वहाँ टेक्स्ट, उसका जो कैप्शन आ रहा है वो पढ़ने के लिए। तो ये इनोवेशन है। अगर आप इसको एक बड़े एक बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हैं किसी तरीके से, तो दैट विल बिकम ए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप, और ये बहुत बड़ा मार्केट है।
आप इसी तरह से देखिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो एजुकेशन के एरिया में कुछ करना चाहते हैं और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं और इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस और पॉडकास्ट बनाकर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से शुरुआत की जा सकती है। तो डॉक्टर शर्मा, हमारा टाइम हो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये भी बताइए कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर इंटरेस्टेड है, कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, स्टार्टअप इस एरिया में करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, कैसे आगे बढ़े? कोई आइडिया है उसके पास या वो सर्च करे? हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, आज क्या, हम इससे पहले भी ये हमारे जो उद्यमिता की ओर सीरीज है, इसका जो मेन पर्पज ही यही है, टू जनरेट आइडियाज इन डिफरेंट सेक्टर्स सो दैट यू कैन डू सम एंटरप्रेन्योरियल वर्क इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि हमने देखा था कि पहले हम इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी भी बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, और आज हमने बहुत सारे एरियाज़ की बात करें, चाहे वो पेडागोजिकल टीचिंग लर्निंग की बात हो, असेसमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इंक्लूसिवनेस की बात हो, या हमारा कंटेंट क्रिएशन की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, या पेरेंट्स काउंसलिंग की बात हो, स्टूडेंट्स काउंसलिंग, ये जितने भी सारे एरियाज़ हैं, दीज आर दी एरियाज़ जहाँ अब उसमें ज़रूरत क्या है कि जो भी हमें देख सुन रहे हैं उनको ज़रूरत है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल ट्रेनिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स हैं, उनमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, क्या क्या गैप एरियाज हैं। ऐसे गैप एरियाज या ऐसी ज़रूरतें जहाँ के अभी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। अगर हम प्रॉब्लम्स ठीक से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर आप उसके बाद में यू कैन थिंक ऑफ फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। क्योंकि आपने देखा कि नहीं, बच्चे क्लासरूम में प्रॉपरली अटेंटिवली पढ़ नहीं रहे, टीचर को ध्यान नहीं दे रहे, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अब उनको कैसे एंगेज किया जाए क्लासरूम टीचिंग में, वो आपका एक इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप का या इनोवेटिव अप्रोच का एक वो हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, एक आइडिया हो सकता है, आप उस पर काम करिए। ऐसी अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन देने में पता चला कि जैसे अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम होता है जून में और दिसंबर में, और जून और दिसंबर में पता चला कि मेरा ना जून में मुझे छुट्टी मिल रही है, ना दिसंबर में छुट्टी मिल रही है, ना आई एम नॉट एबल टू एग्ज़ाम जून और दिसंबर में, और मुझे पता चला कि मेरे 3 साल या 5 साल ऐसे ही निकल गए। कैन यूनिवर्सिटी और समबडी थिंक कि मुझे जब चाहो तब एग्ज़ाम दिला दो? वो एक पॉसिबिलिटी है आपको, जैसे कि व्हेन आई वांट वॉक इन एग्ज़ाम कराने की बात, वो एक एरिया ऑफ इनोवेशन हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो है टेस्टिंग फॉर लर्निंग की बात करते हैं, मुझे एग्ज़ाम देने से पहले मुझे 10, 20, 50 बार प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट में ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाऊं और मुझे जब मैं बैठा हूं तभी मेरे लिए एक नया क्वेश्चन पेपर जनरेट हो जाए, नए क्वेश्चंस आए उसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और मैं आंसर दूं, और आंसर के बाद में मुझे उसमें आंसर गलत है या सही है उसका भी मुझे जब पता चल जाए कि तुम्हारा आंसर सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये पता चल जाए, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन क्या, इवन एंटरप्रेन्योरशिप बन सकती है इसमें, कोई भी इसमें काम कर सकता है। टेस्टिंग फॉर लर्निंग के लिए हम बात करते हैं, टेस्टिंग फॉर लर्न, क्योंकि हम केवल ये नहीं कहते कि एग्जामिनेशन केवल जो है एग्जाम का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए होता है, वो एग्जाम या कोई भी किसी तरीके एग्जाम होता है वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, वो आप कर सकते हैं। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं इनोवेशन स्टार्टअप। जैसे कि गैप एरिया आइडेंटिफाई किया, तो आप देखेंगे कि इसके लिए क्या सोल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं। बिल्कुल, फिर कैसे, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, आपके पास कितना रिसोर्सेज हैं, किस तरह आप जो टारगेट ग्रुप है वो सफिशेंट है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं उसको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि वे नहीं करेंगे, उस तरीके की आप मार्केट सर्वे कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, फिर उसके बाद में अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करके यू कैन टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और फिर उसको अगर आप प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप उसको उस सर्विस को देंगे तो पैसा आप कहाँ से खर्च करेंगे, और उससे जो अर्न कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे, क्या क्या उसके लिए आपको आइटम्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, टीम की भी जरूरत पड़ेगी। टीम में कई बार अगर आप उसमें टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और आपके पास में वो एक्सपर्टाइज नहीं है, आप तो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के फील्ड के, आपने सोचा मैं बहुत अच्छी पेडागोजिकल अप्रोच दे सकता हूँ,
लेकिन आपको उसके लिए ज़रूरत है कोई एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी तरीके का सॉफ्टवेयर, तो वहाँ आपको टीम लेनी पड़ेगी या कोई एम्प्लॉय करना पड़ेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप कोलैबोरेट करना पड़ेगा तो उनके साथ आपको में। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स को लेना पड़ेगा, टीचर्स को लेना पड़ेगा जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स से हैं। अगर आप कोचिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या कोई ऐसी ट्यूटरिंग सर्विस, तो आपको ट्यूटर्स को एनरोल करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं आप, फिजिकल स्पेस है तो वहाँ से कर सकते हैं। ये आपको पूरा एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, एक टीम बनानी होगी और सोल्यूशन बना के उसको आप लॉन्च कीजिए। फंडिंग के लिए देखिए कितना रिसोर्स लगेगा, पूरा बिजनेस मॉडल बनाइए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं फॉर एज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन एंड लॉन्च ऑफ योर स्टार्टअप। और इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या रहते हैं जो मोस्टली इस एरिया में सब फेस करते हैं? एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज फेस कर सकते हैं। देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू की बात करते हैं, दूसरा यह है कि अगर हम किसी भी नई अप्रोच के थ्रू जाएंगे, कहाँ टीचर्स के पास जाएंगे, टीचर्स उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कूल्स में करेंगे, या जो पेरेंट्स हैं उनको कहेंगे अगर डायरेक्टली, तो उनका माइंडसेट चेंज करना भी बहुत, क्योंकि सब लोग जो है जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग है उससे हटके लोग थोड़ा सा तैयार नहीं होते हैं। तो एक चैलेंज आता है। दूसरा ये भी आता है कि कई बार आपको चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि फंड्स आप कैसे जनरेट कर रहे हैं। तीसरा ये भी होगा कि अगर आपका जो टारगेट ग्रुप है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं या डिसेबल्ड ग्रुप के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कई बार रेगुलेटरी मेजर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उनके प्रॉपर वो हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, उनके लिए वो सारी चीजें, रेगुलेटरी कंप्लायंस, एथिकल कंप्लायंस इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आल्सो जीएसटी रिक्वायरमेंट्स, यस, दैट इज वो तो चलो खैर, आप जब बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो जीएसटी जब अर्न कर रहे हैं तो जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट हैं, कुछ नहीं है, कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ लिमिट है, तो यू हैव नहीं, अब आपको देखना पड़ेगा आप किस तरीके का, अगर आप कोई स्टार्टअप की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं, गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। अगर आप उसको किसी और दूसरे फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, जैसे अगर आप कोचिंग सेंटर हैं या इस तरीके की बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अलग तरीके के टैक्स सिस्टम्स हैं, यू विल हैव टू अंडरगो दोस, वो आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। यू नीड टू नो अबाउट दोज रिक्वायरमेंट्स जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना भी बहुत ज़रूरी है इसमें। दैट इज़ ऑल्सो मेजर स्टेप and a milestone in this direction. And of course गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं। फर्स्ट इज़ स्टार्टअप इंडिया, जिसमें वो काफ़ी फंड्स और अवार्ड्स और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और भी कई स्कीम्स हैं, जैसे पीएम ई विद्या स्कीम है, और दीक्षा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ई पाठशाला है, निष्ठा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, और नेशनल डिजिटल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एनडीआर, और नेशनल नॉलेज नेटवर्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी ऐसे सपोर्टिंग स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप्स को बहुत मोमेंटम देती हैं। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? इनफैक्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है और एनकरेज कर रही है हमारे यूथ को, बहुत नए नए इनोवेशंस के लिए, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और पर्टिकुलरली एजुकेशन के सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद। और तो वहाँ बस ये है कि देखिए क्या क्या एरियाज़ हैं, क्या गैप एरियाज़ हैं, क्या नया कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनको देखते हुए आई थिंक वी शुड कम फॉरवर्ड एंड देन डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। डॉक्टर अजीत, आप कुछ इसमें मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स भी फाइनली इसमें बोलना चाहता हूँ। जैसे ये जो बेनिफिशियरी का जो ग्रुप है ना, इसमें इफ़ यू सी द स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा अराउंड 30 करोड़ 25+ करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर। फिर जो टीचर्स का ग्रुप भी इट इज़ कमिंग अराउंड 1 करोड़, पूरा मिला के स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन दोनों मिला के। फिर उसका जो पेरेंटल साइड भी है, तो देयर आर good number of beneficiaries, and if you come out with this kind of innovative ideas, it is going to it's going to be a big help for this big population. Yes. थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you.